Hello, Assalamualaikum viewers. I'm very pleased to introduce a senior parliamentarian, former Minister for Education, Vice Chancellor, University of South Asia, Mia Imran Masood, who is a senior politician, educationist, a strong voice, advocate for women economic empowerment, education, health, and human rights. Let's welcome him. Assalamualaikum, Imran साहब क्या हाल है आपका? Thank you. Thank you so much, Imran Saab, for joining. Thank you so much for joining us. You're very senior, busy, and doing multiple things. How do you manage everything? Well, it's tough when you are involved in so much of work and so much of responsibilities. And so you have to do multitasking, or it takes a lot of effort, a lot of commitment, and you have to discipline yourself. You got to be there on time, do your research, do your work, your presentations. But I think it is interesting. If you have that passion, if you like your work, and if you enjoy your work, then you can really be in it, and only then you can show some good results. So my journey has been tough. It has been very challenging. And in Pakistan, when you want to do something, reform, to initiate something, to execute something, so implementation part is always very tough. When you think about something, a vision that you want to translate into reality, so that ground pe usko lana jo hota hai na, that becomes very tough actually. That's where you require your resolve, your will, or commitment, patience. Patience is very, very important. In Pakistan, things do not happen all of a sudden, and they do take their own time, their own pace. So you got to be very patient, and you got to be committed to your cause, and you have to then wait for the results, or patience is the name of the game. So when you have both the blends of policy making and also in the private sector, so you are better off designing your own policies and your own targets, and it gives you a lot of a kind of experience and wisdom. अगर आपने कोई नई चीज शुरू करनी है, there's a lot of stress when it comes to the bureaucratic, channels. And it's very time taking for a private sector to start something. Too much of regulation, overly regulated है हमारा ये इदारा है. With the passage of time, things are getting better because अब हमारी consultation शुरू हो गई है गवर्नमेंट के साथ. पहले कंसल्टेशन का कल्चर नहीं था. डिसाइडेड बस था कि कुल्हाड़ा मारा और नया कानून बना दिया विदाउट आस्किंग. पीएचडी बदल दी और 4 अंडरग्रेड बदल दिया वगैरह वगैरह. लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू दी गवर्नमेंट नाउ कि अब वो हमारी बात सुन, और ये कल्चर क्रिएट हो गया. अब हम दोनों साइड्स बैठती हैं आपस में, एंड देन वी कम अप विद समथिंग व्हिच इज मोर यूनानिमस, और जिसमें एग्रीमेंट भी हो जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंटर जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर है. हम स्टेक होल्डर्स हैं बिगेस्ट. एचईसी पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इम्प्लीमेंटर का जो हार्ट एंड सोल है उसके अंदर आना जरूरी है, और जब उसका हार्ट एंड सोल आ जाए तो 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है. सो इट वर्क्स. इट्स अ गुड फॉर्मूला. बात चल रही है, काम हो रहा है, और थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ. इमरान साहब प्लीज ये बताइए कि मौजूदा गवर्नमेंट की डू यू सी दे हैव एजुकेशन एज अ प्रायोरिटी एजेंडा फॉर देम and they really want to bridge the gaps between modern education and जो पिछले 70 साल से. Do you really think education is their priority? Like, we are not doing any controversial thing here, but we just want to know what is the current scenario for education for the government, for the sitting government. It's not I don't want to do any blame game. I just want to say that we can do more. हम ज्यादा कर सकते हैं. Current government ने, Honorable Prime Minister of Pakistan ने ये कहा था, The moment he took his oath, उसने कहा जी हम यहाँ पर इमरजेंसी लगाएंगे, एजुकेशन की इमरजेंसी. तो वो हमें इमरजेंसी नजर नहीं आई इन टर्म्स ऑफ कि आपने क्या रिफॉर्म किया, आपने कितना पैसा लगाया एजुकेशन सेक्टर में, जीडीपी का कितना आपने शेयर दिया एजुकेशन सेक्टर में, क्या आपने पॉलिसीज बनाई. तो वो एज सच हमें नजर नहीं आया. चंद ऐसी चीजें थी जो अच्छी हैं. स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का. 30,000 स्कॉलरशिप शुरू की. आपने बच्चों को लैपटॉप्स दिए. स्कॉलरशिप्स देना और लैपटॉप देना ये एक बड़ी माइनर चीज है अच्छी है, लेकिन इससे आपका पूरा टोटल जो एक रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, और इससे कोई पाकिस्तान की जो नेशन का जो फेट है वो नहीं बदलेगा इतनी जल्दी. बिकॉज अगर आपने फेट बदला, आप एक्सेस, आप यूथ का जो एक्सेस टू हायर एजुकेशन है, आप क्वालिटी पे, आप ड्रॉप आउट पे, इनरोलमेंट पे, एक्सेस टू एजुकेशन पे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को
स्कूलों में लेकर आए, अपना शरह ख्वानगी कैसे बढ़ाना है, नई बिल्कुल। टेक्नोलॉजी कैसे, लैब्स कैसे, किस तरह स्ट्रेंथन करना है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, उनको क्या हमने फैसिलिटेशन देनी है। अगर 70 अरब रुपया बजट है हायर एजुकेशन कमीशन का और 45 अरब बजट है सिंध की हायर एजुकेशन कमीशन का और सिर्फ 10 करोड़ है पंजाब की हायर एजुकेशन कमीशन का बजट है, तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं है। This is और disaster. आप इसको जस्टिस करें, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और आप इस एजुकेशन की और सिचुएशन समझें। हम बहुत पीछे रह गए हैं मैडम, बहुत पीछे रह गए। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फार लो, फार बिहाइंड, हम अपने रीजन में भी बहुत पीछे रह गए हुए हैं। हमारा 13% बच्चा सिर्फ हायर एजुकेशन में जाता है, बाकी सारा लॉस्ट हो जाता है। कहाँ जाता है? Nobody has ever recorded this. हालांकि हमारे हमसाये ममालिक 20-20, 25-25% लोग, बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है हमारे यहाँ। क्वालिटी पे, स्कूल साइड पे हम रोज तजुर्बे नए नए करते हैं, नया नया करिकुला आता है। कभी 9वीं 10वीं हम इकट्ठी करते हैं, कभी हम 10वीं और 11वीं और 12वीं को हम अलग-अलग कर देते हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंट्स करना, एक हमें खेल अपना एक फोकस, खत्म। जी। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी तफरीक है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, बहुत बड़ी एक क्लास डिफरेंस है। इसका क्या हल जो है? लोग, इस उर्दू मीडियम देखिए इंग्लिश इसका मीडियम का हल क्या तो है? भाई इसका हल ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को समझते हैं कि वो हाई अचीवर्स और उनका करिकुला बड़ा अच्छा है, ऑक्सफोर्ड का है, कैम्ब्रिज का है, आईबी है, वगैरह वगैरह, तो आप सरकारी स्कूल को ऊपर ले आए ना उनकी सतह पर। आप प्राइवेट को ना नीचे लेकर आए, आप प्राइवेट को नीचे मत लेकर आए। यही हुआ था जब एसएनसी आया था, जब सिंगल नेशनल करिकुलम आया था, तो यही हुआ था। और कहा यह गया था कि एक कौम एक किताब, और वो भी उर्दू मीडियम, नेशनल लैंग्वेज। भाई नेशनल लैंग्वेज जरूर आपको, हमारा राइट भी है और हमारा ड्यूटी भी, लेकिन लैंग्वेजेस बाकी की बहुत बड़ी कह लें जरूरत है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नाउ, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हम अंग्रेजी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। बिल्कुल तो भी ये नहीं। बहुत या बहस तो आपकी चली है इकोनॉमी, इस, या तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग जी, हो कि आप उर्दू बोलें, पीपल आर कमिंग टू योर, मतलब चाइना की तरह, जैसे वो इंग्लिश बोलने को ना, वो इंग्लिश बोलने अपनी तौहीन, वो इंग्लिश बोलते ही नहीं है। लेकिन चाइना इज अनदर वर्ल्ड। पाकिस्तान एक इंतहाई गरीब मुल्क है। उर्दू से तो आप बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर, ऑलरेडी ड्रॉप आउट इतना है। आप प्राइमरी के बाद में आप बच्चों का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा आपको पता। तो जब क्वालिटी कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा तो फिर वो क्वालिटी। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं रिसेंटली आई बीन टू चाइना अबाउट 2 weeks बैक एंड आई वाज टोटली एस्टोनिश्ड से उन्होंने डेवलपमेंट की है। उनके सक्सेस मॉडल्स हमने स्टडी किए, पावर्टी एलिवेशन देख, बिग डाटा देख, टेलीकम्युनिकेशन देख, वेस्ट मैनेजमेंट के, फार्मिंग का, एजुकेशन का, 99 शरह ख्वानगी है, 99% लिटरेसी रेट जो है। इमेजिन। और चाइनीज जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 6th हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, और इतनी रिसर्च है, और उनका जो एआई है, और उनका जो, आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई टोटली एग्री विद यू। तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। हमें इंटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, और हमें कंटिन्यूटी चाहिए। हमें कंटिन्यूटी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे एजुकेशन को, खुदारा आप प्रायोरिटी दी। हमारे यहाँ इशू ये है कि जो स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर के एक्सेल कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते, आप उनको बंद करने पे शुरू हो जाते हो, आप उनको सील कर देते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनको बुरे नामों से आप उनका नाम लेते, पे कैप लगा देते हो। इन्फ्लेशन आती है, वो फीसें ले, वो बुरे बन जाते हैं। पर वो तो क्वालिटी एजुकेशन, आप उनकी लैब्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्लासरूम अच्छा है, बुक्स अच्छे हैं। पार्टनर। बिल्कुल। सरकारी यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स इज डिफरेंट, और प्राइवेट के लिए डिफरेंट लॉ है। टारगेट है बिल्कुल। बच्चा कौम का, लेकिन वो प्राइवेट में पढ़े, उस प्राइवेट के जो मालिकान जो है उनके लिए लॉ मुख्तलिफ हैं। और इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। यही कहता हूँ
कि आप खुदारा प्राइवेट सेक्टर को आप इज्जत दीजिए। हम बहुत पीछे रह गए, हमारा शरह ख्वानगी आज भी बहुत पीछे है, सॉरी टू से बहुत ज्यादा दिस। अरे हाँ, बिल्कुल। क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी, स्किल्ड एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स, एआई वगैरह, वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड। मैं शर्मिंदा हूँ, अब मुझे अफसोस है कि हम पाकिस्तान पीछे रह हम उस स्पीड से आगे नहीं जा रहे हैं जिस स्पीड से हमें जाना चाहिए। इमरान साहब, मैंने देखा है आपकी जी प्रोफाइल के अंदर भी और आपकी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि यू आर पार्ट ऑफ वेरी नीश एजुकेशनल हेरिटेज वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड यू आर ऑल्सो एन alumni ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंटरनेशनल। एंड जब आप जाते हैं बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मर एंड अभी वीसी फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, डू यू फील आपका वो गिल्ट बढ़ता जाता है कि भाई हमारे मुल्क में क्या दो से तीन चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूथ और एजुकेशन को व्हेन यू गो टू दीज इंटरनेशनल फोरम्स एंड व्हेन यू टॉक टू ऑल दीज इंटरनेशनल सक्सेसफुल पीपल? जाता हूँ, जब बाहर जाता हूँ, सबसे जो बड़ी बात है जो उन मुल्कों में नजर आती है कम्युनिटी की या सिटीजन्स की, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। और वहाँ पे ट्रैफिक को ले ले, वहाँ पे एक पैदल आदमी जो फिर रहा है, वहाँ पे किसी बैंक में चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड लॉयल्टी टू योर ओन कंट्री। लॉयल्टी जो है, मैंने ऐसी लॉयल्टी नहीं देखी है। तो ये जो जब तक हम अपनी जो जो सिटीजन राइट्स हैं वो ड्यूटीज पूरी नहीं करेंगे, हम अच्छे शहरी नहीं कहलाएंगे। अच्छा मुआशरा तब बनता है, मैं गुजरात से मेरा ताल्लुक है, सारा गुजरात मेरा डूबा हुआ था पानी में, सैलाब में, हम तो मर गए हैं और हम लोग तो बर्बाद हो गए। सैलाब आया है इसलिए कि प्लानिंग ही कोई नहीं है। जो सरकारी हमारे इंजीनियर्स हैं, बल्दिया गुजरात है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, आई डोंट नो ये क्या प्लानिंग होती है। हमारा भी कसूर है, हम भी गवर्नमेंट में। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत पीछे रह गए। आप लिविंग ये स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी जल्द कोठियां ये आपको 2 साल और ले गए हैं पीछे जी। हमारा इतना नुकसान हुआ है लोगों का गुजरात शहर में, लेकिन हमारी कोई वो प्रायर कोई हमारी तैयारी नहीं। तैयारी पीडीएम नहीं। में हमें अलर्ट देता है जब जलजला आ चुका होता है, जब जलजला हाँ। सर पे हो, बारिश सर पे हो, लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं करते। हमें हमारी प्रैक्टिस ही, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है इमरजेंसी को हैंडल, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हम तैयार ही नहीं। 4 फुट पानी, 6 फुट पानी शहर में आ जाए, हमें पानी निकालना ही नहीं, हम क्या करें? तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का जो बिगेस्ट हिट हुआ है वो पाकिस्तान हुआ है। बहुत हमारा क्रॉप का कल्चर बदल गया है, हमारे फ्रूट्स बदल गए हैं, हमारे मौसम बदल गए हैं। 2 दिन हुआ है गर्मी से 30 डिग्री से एकदम 16 डिग्री पे आ गए हैं। मैं भी इमेजिन इस्लामाबाद में हूँ, एकदम ठंड आ गई है। अब वो बहार और खिजां का वो मौसम खत्म हो गए हैं। अब यहाँ खत्म हो गर्मी है या सर्दी है। तो गई है, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज को आप मद्देनजर रखें ना, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी स्टडीज के लिए। हमारा स्कूलों का एकेडमिक कैलेंडर पूरा ही नहीं होता। स्टडी बिल्कुल जो डेज होते हैं 190 200 वो पूरे ही कभी नहीं होते। स्मॉग बिल्कुल। आती है तो स्कूल बंद हो जाता है, बारिश हाँ आती है तो स्कूल बंद हो जाता है। तो हमें बिल्कुल प्रिडिक्ट करना है, हमें एक एसओपी अब बनाना है, क्योंकि ये बारिशें तो नहीं रुकनी, ना स्मॉग रुकनी है, ये आनी है। तो आया इस पे कोई बैठा है, आया कोई हमारी डिस्कशन हुई है? हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन एक बच्चा हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई एकेडमिक कैलेंडर पे, उनको एहसास हुआ, हमें कोई एहसास नहीं हुआ। तो चैलेंजेस हमारे बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत पीछे रह गए। हम बातें बहुत हम बड़े सियाने हैं, अपने मतलब को हम सब सियाने हैं, लेकिन जब कौम बनाने की बात आती है तो ये सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज पे आती है, जामिया पे आती है, जुडिशरी पे आती है, इंस्टीट्यूशंस पे आती है। ये पाकिस्तानी इदारे हैं बाबा, ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट है, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। लेकिन हर कोई आइसोलेशन में काम कर रहा है, हर कोई सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है अपनी, मैं ठीक रहूं, मेरा इदारा ठीक रहे। ऐसे बात नहीं चलेगी। हमें एक कौमी एजेंडे पे काम करना है, ऑन वन एजेंडा, विच इज टू टेक पाकिस्तान अहेड। और ये सारे जो हमारे अलाइड इंडिकेटर्स हैं और रिक्वायर्ड जो इश्यूज हैं उनको हमें साथ लेकर, बगैर जुडिशरी के, पार्लियामेंट के, जमहूरियत के, तालीम के, हर इंडस्ट्री के होगा, उसके लिए हमें काम करना होगा। दुनिया डू यू थिंक कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन रेवोल्यूशन है, बट डू यू थिंक कि वो क्वालिटी सेम रहेगी कि एक फिजिकल क्लास के अंदर जो इंटरेक्शन है और जो ऑनलाइन होगा? इज दिस आंसर टू दिस स्मोक की एब्सेंस के ऊपर या फिर फ्लड की? डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव, बजाय से कि बिल्कुल छुट्टी करके वो घर में बैठे, उनको ऑनलाइन एजुकेशन की? बट गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे अपने आप को करेंगे? घरों के अंदर एक बटन वाला फोन है, जाहिर है जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके वालिदैन इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो वो बच्चे क्या करें? देखिए, गवर्नमेंट के स्कूलों में तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकती, दे आर नॉट इक्विप्ड। जी वहां पे तो बच्चों के पास ना गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं हो सकती, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, बट
ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एन ऑल्टरनेट टू अ जनरल एजुकेशन जो क्लासरूम में होती है ऑन कैंपस. इट इज ओनली ऑनलाइन. इट वर्क्स जब आप किसी क्राइसिस में, कोविड आया, कोविड में हमने, लेकिन बिल्कुल। ऑनलाइन में मैं समझता हूँ, मेरा, आई मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कि आई एम नॉट एन अथॉरिटी ओवर ऑनलाइन का, लेकिन ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं है, वो टीचर और उसकी जो होती है स्टूडेंट की ना कनेक्टिविटी जो है वो ऑनलाइन है. वो फिजिकल जो है वो जो एहतराम टीचर का, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन आंसर. तो well, it was all right that we started online during the COVID period. That was very necessary, and we had no readiness for the online. Let me tell you, we were not Yeah. trained for that. We had never heard about Zoom, Google Classrooms and वो Teams. ये सारी चीजें हमने सीखी. हमने अपने स्टूडेंट्स को, हमने अपने जो है वो टीचर्स को अपने ऑनलाइन के लिए स्टूडियोज में और रिकॉर्डिंग हमने शुरू की, और बच्चों को हमने बताया कि आपने ऑनलाइन कैसे हासिल करना है. वो बच्चों को वो हमने टाइम गुजार लिया, और वो हमने अपना जो है वो वक्त हमने ज़ाया नहीं होने दिया, और हमने कुछ ना कुछ उसमें हमने हासिल कर लिया. Imran Saab, you've been very successful, mashallah. You had a political career. You're involved in a lot of different projects also. उसका मसला क्या है? Why are they upset? They have phones, laptops, more access to resources, pocket money, better schools, better tuition. इसके बावजूद भी why are they unhappy? What do you feel के what is making them unhappy? आई थिंक जो हमारे ये जो जेनजीज हैं और जो अल्फाज अब आने वाले हैं, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स, हाउ यू कंट्रोल योर चिल्ड्रन, यू ग्रूम योर चिल्ड्रन. ये एजुकेशन जो है, ये माँ बाप अपने घरों का एक सारा सिस्टम होता है. दूसरा जो अनरेस्ट आता है आज के यूथ में, वो ये है कि वो जो लेफ्ट राइट जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है विच इज नॉट करेक्ट, अगर पाकिस्तान में कत्ल हो, डकैती हो रही है, चोरी हो, वगैरह वगैरह, तो आई थिंक वो बच्चा जो है, वो जो यंगस्टर है, हु वांट्स टू बी समथिंग, हु वांट्स टू डू समथिंग एंड ही लव्स हिज कंट्री, तो जब वो लेफ्ट राइट देखता है, अब इंफॉर्मेशन अब हम झूठ नहीं बोल सकते उसके, क्योंकि उसके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है. दूसरा ये है, इस जवान बच्चे को फिगर्स भी मिल जाती है कि हमारा शरह ख्वानगी क्या, कितनी चोरियां आज हुई हैं, पूरी दुनिया में आज क्या हो रहा है, जंग कहाँ पे हो रही है, फलस्तीन में, कश्मीर में क्या हो रहा है, ग्लोबल क्या इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज क्या हैं, इलेक्शनियरिंग हो रही है, धांधली हो रही है, मारपीट हो रही है, पकड़ दकड़ हो रही है. तो इस बच्चे की एक्सेस जो है, हम वो लोग हैं जो पीटीवी के जब एक ही चैनल होता है, ये वो बच्चे हैं जहां पर सैकड़ों चैनल्स और सैकड़ों इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है इंफॉर्मेशन का. तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो अनरेस्ट क्रिएट करती है बच्चों के जहनों में. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दे वांट टू बी ओवरनाइट मिलियनेयर्स, वो चाहते हैं कि हमें बड़ी कंपनी के हम सीईओ बन जाएं. सो इट्स अ मिक्स्ड फिनोमेना. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जनरेशन और मेरी जनरेशन में फर्क, आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत मुख्तलिफ होंगी. अब हम साइबर एज में जा रहे हैं, हम एआई में, यहाँ पर इमोशंस कम है और टेक्नोलॉजी ज्यादा है, और हमें अब अपने आप, हमारे कल्चर्स जो हैं, हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, हमें ज्यादा उनको करीब रखना पड़ेगा बच्चों को अपने, हमें वैल्यू एजुकेशन उनको, हमें उनको ट्रेडिशन और रवायत और रिलीजन, और अगर आप खाली उन पे छोड़ दें तो ऐसा नहीं होने वाला. बट आई थिंक अभी भी पाकिस्तान के यूथ में बहुत पोटेंशियल है. पाकिस्तान के यूथ को एक रास्ता, एक डायरेक्शन चाहिए. हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है, नए नए सिंगर्स, स्पोर्ट्स पीपल, आईटी के कह लो जो एक्सपर्ट्स डिफरेंट सेक्टर में, अब बच्चे हमारे बड़े बड़े काम, तो हमें उनके टैलेंट को जो है वो ज्यादा इस्टेब्लिश करना है, ज्यादा उनको मौके देने हैं ताकि वो अपना टैलेंट को एक्सरसाइज करें एंड दे शुड डू समथिंग फॉर देयर. लेकिन हमसे ज्यादा ये लॉयल है कंट्री के, मैं ये समझता हूँ. हम भी लॉयल हैं, बट दे फील फॉर देयर कंट्री नाउ. दे ट्राई टू कंपेयर देयर कंट्री विद योर नेबर्स, किसी और यूरोपियन कंट्री से, तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी. लेकिन माँ बाप तो बेचारे मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, हर फैसिलिटी दे. बच्चे जो हैं वो, सबसे बड़ा इशू आजकल ड्रग्स का है, और ड्रग्स जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचाना, पूरी दुनिया में ये ग्लोबल इशू है. गवर्नमेंट और हम इदारे इस पे बहुत काम करते हैं. वी वेरी कॉन्शियस अबाउट, अपने इदारों में हम बिल्कुल ऐसी चीज नहीं करने देते बच्चों को, और हम उनको दूर रखते हैं ड्रग से, और हम कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट से ताकि ये ड्रग वाला मेनेस जो है ये खत्म हो. तो इस तरह की और भी चीजें हैं. स्पोर्ट्स इनको ज्यादा कर, एंटरटेनमेंट कोई नहीं ज्यादा बच्चों को मिलती यहाँ पे पाकिस्तान में. तो ये एक मिक्स्ड किस्म का फिनोमिना आज भी मान है, हम पाकिस्तानी हैं. तो आई थिंक
अभी भी हम ठीक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई खतरे अच्छा वाली सर, बात नहीं एक है। चीज के ऊपर मैं बहुत क्विकली आपकी ओपिनियन चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि आज का जो यंगस्टर है उसके लिए आपके क्या मैसेज है, जो कि मेहनत करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता है और फिर अपनी स्किल को डेवलप करके और अच्छी जॉब या अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वर्सेस एक ऐसा बंदा जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा, उसने अपनी कोई डांस की वीडियो डाल दी, कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो डाल दी, उसको मिलियंस ऑफ लाइक मिलना शुरू हो गए, उसको ब्रांड्स ने एंडोर्समेंट करना शुरू कर दी, उसको टीवी चैनल ने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। दो बच्चे क्या करें, मतलब जो बच्चा फोकस करके उन्हें क्या करना है, क्या डांस करना है, ये वो यंगस्टर अपने आप को जो कि एक रास्ता फॉलो कैसे अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट से बचाए वर्सेस के जिनको ओवरनाइट एक वीडियो डाल। I think it's a very difficult question. To me, I think the most important thing is to make that student a good human being. सबसे पहले तो अच्छा हमने human being बनाना है। पैसे कमाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं। हाँ, पैसे की जरूरत है, पैसे हमने भी कमाने हैं। कंटेंटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है। हाँ, वो बच्चा जिसका टिकटॉक मशहूर हो गया, क्लिक कर गया, वो 1 in millions है, वो 1 in millions है। ये नहीं कि हर कोई कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स हैं जो पैसा बनाते हैं। लेकिन जो जो बेसलाइन है कि हमने उसको अच्छा बच्चा बनाना है थ्रू एजुकेशन। अब वो एजुकेशन लेके ग्रेजुएट हो गया, स्किल्ड, उसके पास डिग्री आ गई है, तो आजकल तो फिर जो सोशल मीडिया पे जो किस्म के चैनल्स और ये भी एक स्किल, ये भी इट्स अ स्किल नाउ, इस पे भी लोग एक्सेल कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे। तो आप इसको एज अ बिजनेस वेंचर ही लीजिए। जो अपना टिकटॉकर है जो पैसा सोशल मीडिया पे और एक बंदा जो टिकटॉकर या सोशल मीडिया पे नहीं है, वो वैसे एंटरप्रेन्योर बने और अपना बिजनेस शुरू करे, ताकि वो भी पैसे कमाए और वो भी इस तरफ आए। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बड़ा काम, टूल्स को भी हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, वेबसाइट और ऑनलाइन शिपिंग के, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के, हम सारा पढ़ाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। So basically, We you are make, saying it's up to हम the अपना student, the youth, how they are using the mediums. आप इसको डिपेंड करता है ना कि हाउ यू यूज इट। हाँ, जो बच्चा एंटरप्रेन्योर बन गया और वो इसको टेक को यूज करके पैसे कमाना, तो व्हाई नॉट। अब तो Why सारा not? डिजिटल है, फिर तो अगले होना 5 चाहिए। सालों में ये कौन सी आपको तीन चीजें हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसको फोकस करने की जरूरत को बेहतर करने, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे हैं जहाज भर भर के, उनको पाकिस्तान के अंदर रिटेन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट, क्या लगता है कौन सी 3 चीजें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को वाकई हंगामी बुनियादों पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक आप है। एक अच्छी स्टेबिलिटी दे दें इस कौम को, आप एक कंटिन्यूटी दे दें, आप जस्टिस दे दें, डेमोक्रेसी दे दें, और आप एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे दें, आप इंसेंटिवाइज कर दें इन्वेस्टर को यहाँ। जब तक आप उसको सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी को या इन्वेस्टर को, तो आपकी सेफ्टी नहीं होगी पैसा इन्वेस्ट करने की। अगर देखे कोई बाहर से अमेरिकन आके इन्वेस्ट करता है और उसको ये डर हो कि मेरी तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मेरे पैसे की इन्वेस्टमेंट, और अगर एक लोकल पाकिस्तानी है जिसने अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अगर वो भी मायूस है और उसको भी स्टेबिलिटी या प्रोटेक्शन है, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी फिर तो कुछ नहीं होता। और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, आपको इन्वेस्टर नहीं, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपके जो बेसिक राइट्स, ये सारा एक लिंक्ड है सारा फिनोमेना। जब तक किसी के बेसिक राइट्स, आप, तो आपने इन्वेस्ट क्या करना है, पढ़ना क्या है, और आपने यहाँ पे पढ़ाना क्या है, और आपने बिजनेस क्या। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं दे। अगर मुझे यहाँ फुटपाथ नहीं अच्छा पीने का पानी नहीं मिल रहा, मुझे बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग हो रही है, और अगर मैं सौदा खरीदने, महंगाई इतनी ज्यादा आ गई, टैक्सेस इतने लग गए हैं, सुई गैस इतनी महंगी हो, तो मैंने तो अपना सर्वाइव करना है, मैंने कमाना, मैं तो अपनी सर्वाइवल की। बड़ी बड़ी ऐसे कौमें हैं जिन्होंने वेलफेयर स्टेटें हैं जो गुर्बत को, चाइना की मिसाल बार बार, वहां तो हर कोई, वहां गरीब है ही कोई, वहां सारे खुशहाल है, वहां सारे अमीर है। गवर्नमेंट ने सबको अमीर, गवर्नमेंट ने वहां पर बेकारी कोई नहीं, ना किसी का वहां गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड लगाया, ना वजीफा लगाया, सबको उन्होंने कारोबार कराओ भाई, फार्मर्स को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी करवाएं, सबको करवाएं। तो खुशहाली तभी आएगी जब आपकी स्टेबल सिस्टम्स आएंगे पाकिस्तान में, स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल किस्म की पॉलिसीज हो। देखिए, इनका गुर्बत का खात्मा ऐसे तो नहीं होगा कि 15,000 रुपए आप उसको चेक भेज दें, उसको Never. कोई स्किल से कमाए भी तो सही, तो गिव देम अ स्किल, गिव देम अ स्किल।
So are you तो planning to स्किल return to सिखाना जरूरी politics? है. Are you planning to Sorry. return to politics anytime soon? Yeah, sure. I am in politics. I am connected to my halka. I go to my town. No, no, I mean, like being the assemblyman, are you missing the floor? Yes, I look these politicians and parliamentarians. तो मैं कहता हूँ यार इनको तो ट्रेनिंग की बड़ी सख्त जरूरत है. ये हल्ला गुल्ला गाली गलोच. हाँ, Or I do miss my assembly. Why not? I want to contribute. I am at a stage where I can contribute in a much better way now. मैंने yes. लर्न किया है. 30 साल पहले इतना काबिल ना होता जो मैं अब हूँ. मैंने सीखा है. हैंड्स ऑन मेरे एक्सपीरियंस है. मैं एक बेहतर इंसान हूँ अब मैं ज्यादा डिलीवर कर ज्यादा मैं अच्छी पॉलिसीज बना सकता हूँ, प्रोग्राम्स बना सकता हूँ. मैंने सीखा है, हार्ड वे सीखा है मैंने. सिर्फ कोई पढ़ा नहीं, प्रैक्टिकली सीखा है मैंने. तो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, नहीं कहता सारे ही अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया हुआ है. क्योंकि अब वो तो बहुत लोग पर्सनल हो गए उम्मीद हैं, पर्सनल घराने. वो कहते हैं ना कि सर एक हमारा मुआशरा वो था कि सहम थी, कि बहू बेटी उनके में बात नहीं. अब तो वो एक पता नहीं क्या मिक्स, हर कोई जो है सबसे पहले अच्छा आपके घर में ये हो रहा है. अब आई थिंक पर्सनल हमले ज्यादा बजाय से कि प्रोफेशनली जो है वो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर, इसने मुझे लगता है बहुत काम खराब. हाँ, सियासत इज ऑल अबाउट ट्रेडिशंस और एक एटिकेट्स होते हैं, वजादारी होती है. सियासत में यू लिव एंड यू लेट लिव. अगर आप अपने ओपोनेंट को आप कुचल दें, तो आप गला घोंट दो, ये सियासत तो नहीं है. उसको हेल्दी ऑपोजिशन भी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर. पार्लियामेंट तब चलती है जब हेल्दी ऑपोजिशन हो. और जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि हस्बे इक़्तिदार और हस्बे जो इख्तलाफ है वो इकट्ठे चलें और बहस हो, अच्छी प्रोडक्टिव बहस हो. तो इंशाल्लाह मे बी अनदर 2-3 टर्म्स में थिंग्स विल गेट बेटर. ये असम्बलियां अपने 5 साल पूरी कर, हम आगे बढ़ते रहें और जितना भी कोई इरेगुलरिटीज है वो सारी साफ हो जाए. क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मैसेज दे, अब जो है हमारी कौम को जो है ना हर चीज का पता चल चुका है. बेवकूफ हर एक बनाना को मुश्किल. पता है कि ये सियासत क्या है. अब जो है ना बेवकूफ नहीं बना सकते आप किसी को. कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो अंडर प्रेशर ही रहेगी. कोई भी लेजिटिमेट लॉफुल गवर्नमेंट आएगी, जैसी भी आएगी, वो अंडर प्रेशर ही रहेगी. इसलिए कि लोग बड़े अब पढ़ लिख गए हुए हैं, बड़ी अकल आ गई हुई है. तो अब ना देयर इज नो रनिंग अवे. अब आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपनी आवाम को. पॉलिटिशियंस और लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, सीएम्स वगैरह बड़ी कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा नाम भी बन जाए, आवाम भी खुश हो जाए. लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशंस. इफ यू हैव गुड इंटेंशंस, you will be successful. Thank you, Imran Saab. You have shared all your experiences from being 25-year-old to now, all these affiliations, all the words, kya hona chahiye, kya nahi hona chahiye, youth, mentorship. Thank you so much. This was very personalized also. And I do feel that we should connect one more time because there is a lot that we can talk. And I hope that you also enjoyed speaking to me. And if you have any closing message about the program, about anything else, please do so. Well, thank you. आपने राब्ता किया. Thank you, Nadia. You asked very nice, good questions. It was a very interesting podcast. अच्छा होना चाहिए जिससे लोग भी enjoy करें, सीखें. Yes, I would like to have a series of these podcasts ताकि हम different sectors को discuss कर सकें और अपने youth को और अपने सुनने वालों को हम कर सकें. Why not? Everybody wants to listen to a good content or quality wala content ho, to why not? So I'm available whenever you want. I'm just a phone call away. My message is that we love our country. किसी भी से अपने बुरे हैं, हमारे इदारे अच्छे हैं या कम अच्छे हैं, लेकिन ये हमारे इदारे हैं. हमें खुद इनको ठीक करना है. कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा. अल्लाह करे कि हमें इतनी विजडम आ जाए, हमें इतनी पेशेंस आ जाए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें. बर्दाश्त वाला जो है ना फीलिंग ये बड़ी होनी चाहिए सब में. इट्स ऑल अबाउट को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर. और जब ये आप में चीज आ जाएगी तो आप में ग्रेस भी आ जाएगी और क्रेडिबिलिटी भी, और हर चीज आगे चल पड़ेगी. हम सारे पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं. अमीर हो, गरीब हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हम सब एक हैं और हमें एज अ फैमिली रहना. और ये नहीं है कि फलां जो है वो गिर रहा है तो गिर जाए तो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ. ऐसा नहीं होगा. आपने अपने नेबर को भी साथ उठा के ले, आपने अपने साथियों को भी साथ लेके चलना है. और ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है. सो 2 wrongs do not make a right. A wrong is a wrong and a right is a right. Right is तो always अल्लाह करे right. कि Thank you so हमें much. हिम्मत मिले और हम अच्छा काम करें. Imran Saab, this is the most Thank you, important जी. message, Thank you that so right much. is always right. And we will say goodbye on this note.
हमारा मुल्क है और हमें मिलकर इसको संभालना है और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा और बहुत सारी मेहनत की भी ज़रूरत है और बर्दाश्त की भी ज़रूरत है इंशाल्लाह I'll get back to you very soon with another story, another amazing human being. Until Allah Okay. Hafiz. Thank you.